برطانوی وزیر خزانہ رشی سوناک اور ان کی اہلیہ برطانیہ کے 250 امیر ترین افراد کی فہرست میں شامل۔ برطانوی اخبار کی جانب سے جاری کی گئی فہرست میں 730 ملین پاؤنڈ کے ساتھ ان کا نمبر 222واں ہے۔ مزید تفصیلات اس رپورٹ میں۔ برطانوی وزیر خزانہ رشی سوناک اور ان کی اہلیہ اکشاتا مورتی کو برطانیہ کے امیر ترین افراد کی فہرست میں پہلی بار شامل کیا گیا ہے۔ 250 افراد کی فہرست میں رشی سوناک اور ان کی اہلیہ کا 222واں نمبر ہے۔ دونوں مشترکہ طور پر 730 ملین پاؤنڈ کے مالک ہیں۔ حال ہی میں رشی سوناک کی اہلیہ اوورسیز انکم پر ٹیکس ادا نہ کرنے کی وجہ سے تنقید کا نشانہ بنی۔ وہ خبروں کا بھی حصہ رہیں، جس کے بعد بھارتی ارب پتی کی بیٹی اوورسیز انکم پر ٹیکس ادا کرنے پر راضی ہو گئیں۔ اکشاتا مورتی کے اپنے والد کی IT کمپنی میں 0.9% شیئرز ہیں، جس کی مالیت 690 ملین پاؤنڈ بنتی ہے، اور گزشتہ سال جس سے انہیں 11.6 ملین پاؤنڈ آمدن ہوئی تھی۔ برطانوی اخبار سنڈے ٹائمز کے مطابق رشی سوناک اور ان کی اہلیہ پہلی بار امیر ترین افراد کی فہرست میں اس لیے شامل ہوئے ہیں کیونکہ اکشاتا مورتی کے اپنے والد کی کمپنی میں شیئرز کی تصدیق ہو گئی تھی۔ امیر ترین 250 افراد کی فہرست میں اس وقت 177 افراد ارب پتی ہیں، جن کے اثاثوں کی مالیت 711 ارب پاؤنڈ لگائی گئی ہے، جس میں گزشتہ سال کی نسبت اس سال 8% اضافہ دیکھا گیا ہے۔ غلام حسین وان، بیورو چیف، 92 نیوز UK۔ برمنگھم کے مقامی ہال میں دم مستم نائٹ منعقد ہوئی، جس میں پاکستان کی پہلی اوپیرا سنگر سائرہ پیٹر اور نوید ناشاد نے اپنی آواز کا جادو جگا کر میلہ لوٹ لیا۔ معروف اینکر وسیم بادامی نے اس موقع پر ملی نغمہ پیش کر کے ماحول کو گرما دیا۔ پاکستانی کمیونٹی نے تقریب میں بھرپور شرکت کر کے پاکستانی فنکاروں کی خوب حوصلہ افزائی کی۔ مزید احوال برمنگھم سے عابد کاظمی کی اس رپورٹ میں۔ پاکستان کے شہرت یافتہ فنکار ان دنوں برطانیہ کے دورے پر ہیں، جہاں ان کی شاندار انداز میں پذیرائی کا سلسلہ جاری ہے۔ برمنگھم کے مقامی ہال میں دم مستم کے نام سے شاندار تقریب کا انعقاد کیا گیا، جس میں پاکستانی ڈراموں اور فلموں کے معروف اداکار اور فلم پروڈیوسر عدنان صدیقی نے گلوکارہ سائرہ پیٹر اور نوید ناشاد کو آواز کا جادو جگانے کے لیے اسٹیج پر مدعو کیا تو حال تالیوں سے گونج اٹھا۔ گلوکارہ سائرہ نے اوپیرا موسیقی کے علاوہ فلم دم مستم کے گیت پیش کر کے خوب داد وصول کی۔ فلم کی کاسٹ میں شامل عمران اشرف، عمر خان، عدنان صدیقی، موسیقار نوید ناشاد، بلال سعید اور دیگر فنکاروں نے مل کر ملی نغمہ بھی گایا۔ پاکستانی فنکاروں نے اوورسیز پاکستانیوں سے اپیل کی کہ وہ پاکستانی فلموں کو دنیا بھر میں پذیرائی دلوانے کے لیے بھرپور ساتھ دیں۔ دم مستم فلم پاکستانی کلچر اور روایات کی عکاس ہے، اس کو لازمی دیکھیں۔ معروف اینکر وسیم بادامی نے ملی نغمہ پیش کر کے ماحول گرما دیا۔ کہکشاں کے یہ جالے رہ گزر تمہارے ہیں۔ اب ہم سب کہیں گے یہ وطن ہمارا ہے، ہم ہیں پاس باعث کے، یہ وطن ہمارا ہے، ہم ہیں پاس باعث کے۔ بلال سعید کی پرفارمنس کے بعد موسیقی کے دیوانوں نے بلال سعید اور عمران اشرف کے ساتھ خوب سیلفیاں بنوائیں۔ اس موقع پر فلم دم مستم کی کاسٹ کی شاندار پذیرائی کی گئی۔ عدنان صدیقی، وسیم بادامی، مومن اور دیگر نے میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ خوشی کی بات ہے کہ پاکستان میں اب ماضی کی طرح کامیاب فلمیں پروڈیوس کی جا رہی ہیں، جنہیں نہ صرف پاکستان میں بلکہ امریکہ اور برطانیہ میں بھی بے حد پسند کیا جا رہا ہے۔ فنکاروں کا کہنا تھا کہ ہمیں اس وقت پاکستانی فلموں اور موسیقی کو پروموٹ کرنے کی اشد ضرورت ہے۔ آپ سب کا شکریہ کہ آپ لوگوں نے اپنے اتنے مصروف وقت سے تھوڑا سا وقت ہمارے لیے بھی نکالا اور پاکستان کے لیے نکالا، اور ہے بھی پاکستانی سارے تو کیوں نہیں نکالیں گے۔ آپ جہاں بھی چلے جائیں، دنیا کے کسی بھی کونے چلے جائیں، بس ایک بات یاد رکھیے گا، پہلے آپ پاکستانی ہیں، پھر آپ اس ملک کے باشندے ہیں۔ گرو کرے گی اور گرو کرنا چاہیے۔ آج ایک فلم نہیں 5 فلمیں ہوئی ہیں، اگر آپ سپورٹ کرتے رہیں گے، فلم دیکھتے رہیں گے، ڈیفینیٹلی پاکستانی فلم انڈسٹری بھی گرو کرے گی۔ پاکستان سے باہر جب بھی میں آتا ہوں، اور خاص طور پر برطانیہ میں، تو پاکستانیوں کا جذبہ بڑا ہی ہمیشہ قابل دید ہوتا ہے، اور برمنگھم تو مطلب دوسرا پاکستانی ہے، منی پاکستان ہے، تو یہاں کے بہت اچھا لگا، بہت زبردست لوگوں سے ملاقات ہوئی، اور یہاں پر ظاہر ہے پاکستان کے بہت کچھ صف اول کے اور بھی آرٹسٹ بھی سب آئے ہوئے ہیں، تو سب کا بڑا زبردست تجربہ رہا، اور میں سب کی طرف سے پورے برمنگھم کا بہت بہت شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں، ہمیشہ کی طرح اتنی محبتیں بھیجنے کا۔ بڑی خوشی ہوئی کہ لوگوں نے یہاں پہ دم مستم نائٹس کو آ کے انجوائے بھی کیا، اپنے پاکستانی جو ان کے لیجنڈز ہیں ان کو بھی لائیو دیکھا، اور اب امید کرتے ہیں کہ جا کر مووی دیکھیں گے بھی، بڑے دیکھ کے بھی آئے ہیں جن کو پسند بھی آئی ہے، اور یہی دعا ہے کہ پاکستانی سنیما اسی طرح گلوبلی ہماری موویز ریلیز ہوں اور ہماری موویز ایٹ پار ہوں
with Hollywood and Bollywood. Why not? Because we have the talent and inshallah अब मूवीज का सिलसिला शुरू हो गया, आप लोगों की सपोर्ट चाहिए. तकरीब के शुरका का कहना था कि फिल्मी फनकार, ड्रामा निगार, मौसीकार, सहाफ़ी, मॉडल, सियासतदान किसी भी मुल्क के कल्चर, सकाफत और रवायात के अमीन होते हैं. जिंदा कौमें अपने फनकारों को सर आंखों पर बिठाती हैं. रिपोर्टिंग टीम के हमरा आबद काज़मी, 92 न्यूज़, बर्मिंघम. मुस्लिम लीग नून के रहनुमा इस्हाक डार ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा है कि इमरान खान ने मरियम नवाज के बारे में इखलाक से इंतहाई गिरी हुई गुफ्तगू की. जिसको औरत का एहतराम होगा वो कभी ऐसी जुबान इस्तेमाल नहीं करेगा. मुसलमान और ख़ुद को लीडर समझने वाले को ऐसी गुफ्तगू नहीं करनी चाहिए. उन्होंने मज़ीद क्या कहा, आप भी सुनिए. इखलाक से गिरी हुई बातें उन्होंने की हैं और काबिल मज़म्मत है न्याज़ी साहब. और जो कुछ उन्होंने गुफ्तगू की जो कि मीडिया रिपोर्ट कर रहा है, कोई भी इंसान जिसको ज़रा सा भी माँ बहन का, बेटी का कोई तक़द्दुस हो और इज़्ज़त एहतराम हो तो वो कभी भी इस तरह की लैंग्वेज इस्तेमाल नहीं करते. आपने देखा कि जो लैंग्वेज जो इस्तेमाल कर रहे हैं वो ज़ेब नहीं देती किसी भी, इवन मुसलमान को ज़ेब नहीं देती. और फिर मुसलमान के अलावा एक अगर कोई बंदा अपने आप को लीडर समझता है और वो एक पार्टी का हेड है तो उसकी अपनी पार्टी को भी उसको सरजनश करनी चाहिए और एक्शन लेना चाहिए उसके ख़िलाफ़. लेकिन वो एक ऐसे इंसान है जिसको ना अपनी ऐसी वैल्यूज़ की कदर है और ना ही उनको बहनों की, बेटियों की कोई समझ है कि उनके किस तरह एहतराम और इज़्ज़त किया जाता है. तो आप उनसे जो कुछ हुआ है मैं समझता हूँ कि इंतहाई अफसोसनाक है. लंदन में एक मरतबा फिर नून लीग और पीटीआई के कारकुनान एक दूसरे के आमने सामने आ गए. पीटीआई के कारकुनों ने इतवार को नवाज शरीफ के घर के सामने भरपूर एहतजाजी मुजाहरे का ऐलान कर दिया. नून लीगी कारकुनों ने भी जवाबी वार के तौर पर इमरान खान के बच्चों के घर के सामने उसी रोज मुजाहरे का ऐलान कर दिया. हसन नवाज के दफ्तर के बाहर जमा कारकुनों ने 92 न्यूज़ से बातचीत करते हुए कहा कि पीटीआई के कारकुनों को पाकिस्तानी सियासत लंदन में नहीं लानी चाहिए. उन्होंने मजीद क्या कहा, आइए आपको भी दिखाते हैं. 1 बजे जमैमा जहाँ पे इमरान खान के बच्चे रहते हैं उसके घर के बाहर पीसफुल प्रोटेस्ट करने जा रहे हैं. ये प्रोटेस्ट इसलिए करने जा रहे हैं कि पीटीआई वाले मेरे कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के बच्चों के घर के बाहर एवन फील्ड हाउस में आ रहे हैं. हमने ये पहले भी ऐलान किया था कि अगर वो जिस दिन मियां नवाज शरीफ साहब के घर के बाहर आएंगे उसी दिन हम पीसफुल प्रोटेस्ट करने उनके घर जाएंगे, जुमाइमा के घर, क्योंकि उसके बच्चे हैं. आप जानते हैं कि शरीफ फैमिली के घरों के बाहर आने की रवायत पीटीआई ने डाली है. तो अब हम यहाँ भी इमरान खान के बच्चे रहते हैं, बेटी रहती है, 2 बेटे रहते हैं, तो हम एज अ काउंटर प्रोटेस्ट वहाँ जा रहे हैं. हम जमाइमा के घर के बाहर नहीं जा रहे, हम इमरान खान साहब के बच्चों के घर बाहर मुजाहरा करने के लिए जा रहे हैं. और रहेगी बात पार्लिमानी तरीके से, मैं सब पार्टी को कहता हूँ कि अगर गालिब गलौज से परहेज करें तो ज़रूर वेलकम, कि जैसे भी वो प्रोटेस्ट करना चाहेंगे हम उसका जवाब ज़रूर देंगे. ये आए रोज जो है हमारे कायद मोहतरम मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के घर के बाहर आते हैं, यहाँ पर उनके बच्चे रहते हैं, फैमिली रहती है. हालांकि उनका सियासत से कोई तल्लुक नहीं है, लेकिन फिर भी वो बार बार आते हैं और हमें भी मजबूर कर रहे हैं कि हम ना चाहते हुए भी वहाँ पर जाने के लिए मजबूर हैं. अगर वो हमारे कायद के घर के बाहर आएंगे तो हम 1000 दफ़ा जाएंगे. इसने जो सोसाइटी का फैब्रिक है ना कि इसने चेंज कर दिया है. गालम गलोच जो एक सोसाइटी में एक पॉलिटिकल डायलॉग होता था, एक तहजीब, वो ख़त्म कर दी. फिर उसके जवाब भी आता है. हम इनसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आपने अगर कोई भी प्रोटेस्ट करना है तो आपके पास लीगल वे है कि जाएं, जाके एम्बेसी के सामने वहाँ पर जाके अपना प्रोटेस्ट करें. और ये बात नहीं आ रही, फिर भी हमारे कायदीन के घरों में जा रहे हैं. वफाकी वज़ीर रेलवे और हवाबाजी ख्वाजा साद रफ़ीक ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा है कि जिस तरह इमरान खान ने आज ज़ुबान इस्तेमाल की, इसका भरपूर जवाब दिया जाएगा. उन्होंने मज़ीद क्या कहा, आप भी देखिए. आज मुल्तान में जलसे में तकरीर के दौरान पीटीआई के सरबराह इमरान खान ने मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ साहबा के बारे में इखलाक से गिरी हुई जो गुफ्तगू की है, उसने हर पाकिस्तानी के सर को शर्म से झुका दिया है. एक शख्स जो पाकिस्तान का वज़ीर आज़म रहा है और जिसका ये दावा है कि वो मुल्क का मकबूल लीडर है, उसको बात करने की भी तमीज़ नहीं है. ये मारा फिरेगा ये शख्स, इसको इसकी मंजिल नहीं मिलेगी. इसने पाकिस्तान के लोगों को भूख, बेरोजगारी, गुर्बत और लाकानूनियत का तोहफा दिया है. ये एक झूठा और मक्कार शख्स है, साजिशी आदमी है, और इसने हमें मजबूर कर दिया है कि हम इसके बारे में सख्त ज़बान इस्तेमाल करें. हम गाली तो नहीं दे सकते, हम किसी की मुखालिफ की खातून की इज्जत तो नहीं उछाल सकते, क्योंकि हम
बहरहाल हर शख्स की अपनी तरबियत है। इमरान ने आज जो कुछ किया ये उसकी तरबियत को और उसके फितरत को रिफ्लेक्ट करता है। कश्मीरी हुर्रियत रहनुमा यासीन मलिक की रिहाई के लिए लंदन में भारतीय हाई कमीशन के बाहर कश्मीरियों ने मुजाहरा किया और यासीन मलिक की रिहाई के लिए नाराबाजी भी की गई। जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट के सदर सैयद तहसीन गिलानी ने मुतालबा किया कि इंटरनेशनल कम्युनिटी यासीन मलिक की रिहाई के लिए अपना किरदार अदा करे। इस हवाले से मुजाहिरीन ने लंदन में ब्यूरो चीफ यूके गुलाम हुसैन अवान से बातचीत की है। आइए आपको दिखाते हैं। झूठे और बेबुनियाद केसेस बनाकर वो कश्मीरी क़यादत यासीन मलिक को झुका सकते हैं तो ये उनकी भूल है। कश्मीरी इस तहरीक के पुष्ट पर खड़े हैं और उन्होंने इससे पहले भी लाजवाल कुर्बानियाँ दी हैं, इससे पहले भी अपनी जानें कुर्बान की है इस तहरीक का और इसके आगे भी चलते रहेंगे। और हम इंटरनेशनल कम्युनिटी से ये मुतालबा करते हैं कि वो यासीन मलिक समेत जितने भी सियासी कैदी हैं उनको रिहा करवाए और कश्मीरियों को उनका हक की आज़ादी दिलवाने में अपना किरदार अदा करें। यासीन मलिक पे कम्प्लीटली पॉलिटिकली मोटिवेटेड केसेस बनाए गए हैं और मोदी रजीम जो हिंदुत्व की सरबराही कर रहा है उनको यासीन मलिक चाहिए। आइंदा इलेक्शन की भेंट चढ़ाना चाहते हैं। हम यासीन मलिक और दीगर हुर्रियत रहनुमाओं की गैर मशरूत राय का मुतालबा करते हैं। यहाँ पे मुतालबा कर रहे हैं कि यासीन मलिक को फौरी तौर पर रिहा किया जाए, क्योंकि यासीन मलिक के खिलाफ जितने भी केसेस हैं वो सारे फैब्रिकेटेड केसेस हैं, वो जाली केसेस हैं। The case going on against Yasin Malik is the same case or same charges of what should be against Gandhi or Jinnah or anyone else, those who ask for liberation of their land and their state. So that's what Yasin Malik is doing, and anything or any case against him, any charges against him are unlawful. We consider हिंदुस्तान ने ये फर्जी मुकदमात बनाकर ये साबित किया है कि हिंदुस्तान मसला कश्मीर को हल नहीं करना चाहता है। उन्हें अगर मसला कश्मीर हल करना है तो यासीन मलिक को रिहा करना पड़ेगा। भारत लेकर आज जो है वो बगैर ट्रायल किए हुए यासीन मलिक को जो सज़ा देने की कोशिश कर रहे हैं, तो हम भारत को ये बावर करवाना चाह रहे हैं कि ये 1984 नहीं है कि वो आज सोशल मीडिया का दौर है और आज कश्मीरी जो है वो पूरी दुनिया में जो है वो भारत के खिलाफ एक बुलंद आवाज़ जो है वो बुलंद करेंगे। मुतालबा कि यासीन मलिक को रिहा किया जाए, जो उस पर इल्ज़ामात लगाए गए हैं वो बेबुनियाद हैं। वो अपनी कश्मीर की लीडर है। हम ये मुतालबा करते हैं कि चेयरमैन जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट यासीन मलिक साहब को गैर मशरूत तौर पर रिहा किया जाए और इंडियन मकबूजा कश्मीर में जितने भी सियासी कैदी हैं, जितनी सियासी असीरान हैं, सबको रिहा किया जाए। दिल्ली में यासीन मलिक का केस हेयरिंग है और उसमें जो है वो एक डिसीजन देना चाहते हैं जिसमें ये खदशा जाहिर किए जा रहे हैं कि यासीन मलिक को 7 साल से लेके जो है वो लाइफ इम्प्रूवमेंट तक दी जा सकती है। हम इस मौके पर ये कहना चाहते हैं कि हिंदुस्तान जो है वो बहुत बड़ी गलती करेगा, इसलिए कि एक फ्रीडम फाइटर को सजा देना ये जुर्म है, ये गलती है, जमहूरियत के नाम पे ये धब्बा है। साबिक वफाकी वजीर और मुस्लिम लीग नून के रहनुमा चौधरी मोहम्मद रियाज ने कहा है कि नून लीग ने मुश्किल हालात में हुकूमत संभाली है। मुल्क के मुआशी हाल भी नून लीग की हुकूमत ही बेहतर करेगी। उन्होंने लंदन में नवाज शरीफ से मुलाकात के बाद ब्यूरो चीफ यूके गुलाम हुसैन अवान से गुफ्तगू की। आइए आपको दिखाते हैं। पाकिस्तान हमेशा क़यामत तक कायम रहने वाली चीज़ है, ये अल्लाह के नबी के कलमे पर बना है। मगर जो आज हालात हमारे मुल्क में पिछले 22 सालों से इस तरफ जा रहे हैं कि इस मुल्क में खाना जंगी को लाया जाए। देखिए, इमरान खान 3.5 साल पौने 4 साल हुकूमत की तो उसके ख़िलाफ़ पूरे पाकिस्तान में नफ़रत फैल गई, बेरोज़गारी बढ़ गई, महंगाई बढ़ गई, हर चीज़ का प्रॉब्लम हुए। मगर अचानक क्या हुआ कि जब हुकूमत बदली तो साथ ही उसके जलसे भरने शुरू हो गए, हर तरफ नारे उसके बजने शुरू हुए। ये इस तरह नहीं होता। पाकिस्तान में जब भी कभी ऐसा मुश्किल वक्त आया एजेंसियाँ एक्टिवेट हो जाती हैं, खुदा इस पाकिस्तान को बचा लें। मियाँ साहब इस बात पर दुखी हैं कि पाकिस्तान के हालात क्यों बदतर हो रहे हैं। पाकिस्तान में एक हुकूमत होनी चाहिए, चीफ एग्जीक्यूटिव एक होना चाहिए, 3-3 4-4 चीफ एग्जीक्यूटिव नहीं होने चाहिए। जो अदारे इस वक्त कर रहे हैं ये पाकिस्तान की बर्बादी है। मियाँ नवाज शरीफ साहब इंशाअल्लाह पाकिस्तान के अवाम के दिलों में बसते हैं और पाकिस्तान से प्यार करने वाला लीडर है। इंशाअल्लाह मैं आज गुजर खान के लोगों को ये पैगाम देना चाहता हूँ, आपके से पाकिस्तान के लोगों को ये मैसेज देना चाहता हूँ कि मियाँ नवाज शरीफ आज भी पाकिस्तान के साथ और पाकिस्तान के अवाम के साथ खड़ा है। तुर्की के वजीर दिफा ने वजीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ से वफ्द की शक्ल में बातचीत की। वजीर आज़म ने जहाज साजी, इंजीनियरिंग, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट और ट्रांसपोर्ट समेत तमाम शोबों में दोनों बरादर ममालिक के दरमियान गहरे स्ट्रेटेजिक ताउन को सराहा। उन्होंने तमाम बैनुल-अक़वामी फोरम्स पर मसला कश्मीर पर पाकिस्तानी मौक़िफ़ की गैर मुतज़लज़ल हिमायत पर तुर्की की हुकूमत और आवाम का शुक्रिया अदा किया।
वज़ीर आज़म ने मुतल्लिका हुक्काम को हिदायत की है कि तुर्की की महारत और तजर्बे से हर मुमकिन फ़ायदा उठाया जाए। उन्होंने तुर्की की हुकूमत और आवाम का तहे दिल से शुक्रिया अदा किया कि उन्होंने पाकिस्तान में कराची शिपयार्ड जैसे मजबूत इदारों की तरक्की में मदद करने के अज़्म का इजहार किया, जो कि तुर्की की हिमायत की वजह से कई सालों में मुनाफा कमाने वाले इदारे में तब्दील हो चुका है। वज़ीर दिफाई पैदावार इसरार तरीन, वज़ीर बराए आबी वसाइल सैयद खुर्शीद शाह, चीफ ऑफ नेवल स्टाफ एडमिरल अमजद खान न्याजी, SAPM ऑन स्ट्रेटेजिक एंड पॉलिटिकल कम्युनिकेशन सैयद फहद हुसैन और दीगर मुतल्लिका सीनियर अफसरान भी इस मौके पर मौजूद थे। गोश्त और मुतबादिल प्रोटीन की सनत से वाबस्ता 6 रोज़ा आलमी नुमाइश IFFA फ्रैंकफर्ट में इख्तिताम पजीर हो गई। नुमाइश में दुनिया भर से 129 ममालिक के कमो बेश 50,000 अफराद ने शिरकत की और सनत से वाबस्ता जदीद टेक्नोलॉजी से आशनाई हासिल की। जर्मनी के अलावा हॉलैंड, इटली, स्पेन, पोलैंड, ब्राज़ील और अमेरिका के शुरा नुमाइश में सर फहरिस्त रहे। मज़ीद तफसीलात असगर मिर्जा की इस रिपोर्ट में। गोश्त और मुतबादिल प्रोटीन की सनत से वाबस्ता आलमी नुमाइश फ्रैंकफर्ट में 6 दिन जारी रहने के बाद इख्तिताम पजीर हो गई। आलमी नुमाइश में गहरा नेटवर्किंग, इख्तरात देखने और अपने कारोबार को आगे बढ़ाने के लिए कंपनीज ने प्रोसेसिंग, पैकेजिंग और फरोख्त के तमाम शोबों में पायदार पैदावार खुद कार अमल बारे बताया। मुतबादिल प्रोटीन के मौजू पर मजबूत और मार्केट के अजीम मुस्तकबिल और तरक्की को कॉन्फ्रेंस के जरिए उजागर किया गया। 129 ममालिक के तकरीबन 50,000 ज़ायरीन ने मारूफ बैनुल अक़वामी तिजारती नुमाइश IFFA टेक्नोलॉजी बराए गोश्त और मुतबादिल प्रोटीन में दुनिया भर से आए सनतकारों से मुलाकातें की। नुमाइश कुनिंदगान ने गोश्त और मुतबादिल प्रोटीन की मौसर पैदावार और पैकेजिंग के लिए नित नई इजादात पेश की। फ्रैंकफर्ट मेसेक के CEO वोल्फ गैंग मार्जन ने हॉल्स में लगे स्टॉल्स का दौरा किया और सनतकारों से मुलाकातें की। उनका कहना था कि इस इंडस्ट्री के शुरका से मिलना मेरे लिए खुशी का बायस है। असगर मिर्जा, 92 न्यूज़, फ्रैंकफर्ट। आपने जानी, अब तक के लिए इतना ही। बाखबर रहिए और देखते रहिए 92 न्यूज़ UK।